Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mawar Shahjaz. You're watching me on my YouTube channel. You're listening to me on Spotify. We're having a Pakistani drama discussion with my favorite, Sadaf Haider. Sadaf, assalamu alaikum. कैसी हैं आप? Walaikum salam and adab. Adab. Sadaf is in full Urdu mode. But do not think, Sadaf, I have forgotten that you owe us a Punjabi review. Punjabi review. Inshallah, करेंगे. Done, done, done. So, Sadaf, a lot of good things happening, a lot of bad things happening, as always in Pakistani drama sphere. हमारे पास नया ड्रामा आ गया है एक, उसका नाम है मुअम्मा, which means mystery, starring Sabaa the legend Qamar. Oh my God, what an actress! So let's that review. That review is like there. We know that she is like beyond phenomenal. Cannot stop raving about her. And it's not like she wasn't always amazing. She was always amazing. But the fact that she chose to take a role like this, kind of like a femme fatale role and very offbeat, which is, I think, why I think it's a risk sometimes for large scale actors to do this role, is because a role like this is because they think, अरे ये बहुत offbeat हो जाएगा. To large scale. क्या कह रही हैं? मैंने कहा वो इतनी सुई सी है लेकिन हम सुई सी है. हाँ, लार्ज स्केल तो उनका फिनोमिनॉन है ना. द फिनोमिनॉन दैट शी इज, दैट्स लार्ज स्केल है. तो वो बहुत ही सुई धागा सी वाकई. तो मुअम्मा जो है लिखा है इमरान नज़ीर ने, डायरेक्ट किया है बहरूपिया फेम शकील खान ने. एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ व्हाट आई थिंक इज a woman who was wronged, and now she is ready to expose the fragility of male loyalty. I felt that from the character. It's 2 episodes in. It stars a multitude of men, and don't we like that gender reversal? First, you had a man who had multiple women in his lives. Now you have a woman who has so many men in her lives, and each of them are telling a different story. So, what was your take? Well, number one, I feel like with Muamma, Pamal, and Kafil, and I think there's something else coming up with Hira Mani in it as well, Hira Salman, and Raguzar on Green TV. Yeah. जी जी. And I feel like the queens of tragedy are back, right? एक वक्त था जब but I mean that's a joke, right? Because in Muamma there's no tragedy queen there. हाँ तकलीफ से गुजरी है, but she's a tough cookie, and I think, I like this attitude. ये नहीं कि I don't like that kind of vengeful attitude, but I like that attitude. I'm gonna live my life well. हाँ ठीक है, आप सब लोग ये कर रहे हैं. The way she handles everything, and Sabaa Qamar is a queen of this kind of behavior, right? वो बेचारगी में नहीं है, वो जहान, right? And this is the thing that at one point when Zahir, she probably a young girl, we can see from the teasers कि उस्मान मुख्तार was her love interest, उसकी ज़बरदस्ती शादी सैयद जबरान के कैरेक्टर से हो गई है. And look, I want to appreciate Sayyid Jabran. I don't know how this guy is such a chameleon and always so underrated. देखो कितने मुख्तलिफ roles उन्होंने किए, right? Just in this He's just a naturally gifted actor, I think. Yeah. Naturally gifted actor. Yeah. It's just absolutely fabulous. So I think it's good, but Mohammed, and this is the wonderful thing, it is maintaining a lot of mystery, right? But I think if it was a little bit that whole track with Nabil Zuberi, उनका क्या नाम है वो लड़के का? जी. Nabil Zuberi. Zishan play कर रहे हैं Nabil Zuberi जी. Zishan, right? And I feel that could have been tightened up a bit. No, that's all I felt the same way. Yeah. थोड़ा सा ना stretched हो गया था, but that is the critic in us. I think average audience जो है, they will be fascinated because it is a fascinating topic, right? This is a woman who's been through something. Yeah, absolutely. I think I agree with you that I think there are a lot of gaps, and the pace between dialogues and between scenes is a bit long, which lets us think, is it kind of stretchy? Is it stretching too much? That's the problem, I think. I feel like these kind of like to your tragedy queen point, I feel like we're kind of showcasing women in terms of survivors in the face of tragedy. I think that's the slight difference. पहले आपको याद है 80s तो नहीं, चलो 90s 2000s में कुछ ड्रामे एक ट्रेंड शुरू हो गया था. 2000s में 10s में जो ड्रामा में ट्रेंड था कि
2010s में ना। 2010s में, हाँ। 10s में तो ऐसा तो था कि भाई जी के जुल्म की दास्तान जो है ना, वहीं उसकी जिंदगी डे वन से ही रकम कर दी गई है। उसको 5 मिनट का सुकून नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी उसकी। सो आई थिंक ये जनरेशनल शिफ्ट भी है ड्रामों में, स्टोरीज में, ऑडियंस शिफ्ट भी है। उस जमाने की जो जवान औरत थी, या जवान से मेरी मुराद ये कि जो उस जमाने की हाउसवाइफ थी, वो शायद इससे कथार्टिक फील करती थी इस तरह की कहानियों से। लेकिन आजकल की जो नस्ल है उसको रिलेटेबिलिटी चाहिए। तो जो क्रूशल फर्क आया है स्टोरी टेलिंग में, वो कथारसिस वर्सेस रिलेटेबिलिटी है। कथारसिस में बहुत सारी चीज़ें आप ड्रामेटिक लाइसेंस ले लेके बहुत दूर तक चले जाते हैं। लेकिन रिलेटेबिलिटी में एक लिमिटेशन होती है। रिलेटेबिलिटी में दूसरी जगह स्कोप खुल जाता है, आप नेचुरल एक्टर्स की तरफ जाते हैं। दैट्स व्हाई हानिया इज सो बिग। That's why Hania is such a huge fan base, because Hania is that quintessential Gen Z बच्ची। और इसीलिए उसके जो फ्लॉज भी हैं वो लोगों को नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो लोगों से रिलेट कर पाती है। वो ब्रांड एक उसने रिलेटेबल ब्रांड बनाया हुआ है। I think कमिंग she's बैक टू, sorry, go ahead. Mhm. I think just coming back to Moamma, I think Moamma is such a good step in a good direction, because it's kind of experimental in many ways. It's not your typical linear story, which is हमारे 8 PM के ड्रामे का जो एक स्टोरी होती है। एक लड़की है, या वो चुलबुली है, या वो शाय है, फिर उसको एक अमीर लड़का पसंद आ जाता है, या एक गरीब लड़का पसंद आ जाता है। तो ये हमारी जो कुछ डाइकोटमीज हैं 8 PM के ड्रामे वाली, वो उससे थोड़ा हट के ड्रामा है। कहानी खुलती ही उसके इवल, नॉट आई एम यूजिंग द वर्ड इवल लूजली गाइज, सो डोंट कम एट मी, बट उसके एक ग्रे शेड के हवाले से ऑडियंस को इमीडिएटली बता दिया जाता है कि ये ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर नहीं है। एंड आई लव द वे सबा इज कैरिंग द रोल। देर इज ड्रामा टू इट, there is filminess to it, there is a lot of like swishing of dupattas, and props Very to Shakti. theatrical, very Very theatrical. theatrical, and I love that they have played with circus like vaudeville style lights and shots. If you notice, there is a lot of emphasis on the mirror, there is a lot of emphasis on the parda, and that parda reminded me, आपने बचपन में सदा वो देखे थे, वो पुतली तमाशे होते थे Yeah. हाँ, बच्चों के मेलों ठेलों के अंदर वो होते थे। तो वो जो जैसे लाल सा पर्दा एक होता था जो आहिस्ता सा खुलता था, फिर अंदर से वो डांस, Okay, पपेट so डांस वाला सीन होता था। having lived in England, that's called a Punch and Judy. So sure, come on. या ओके। तो या हम तो बचपन में पुतली तमाशा कहते थे। पुतली तमाशे जो होते थे, पपेट शो होते थे, वो पपेट शो जो थे वो ऐसे ही होते थे कि जिसमें एक पर्दा सा खुलता था, एंड वो सॉक पपेट्स आके वो डांस करते थे, या कभी वो डंडों पे पपेट्स होते थे। तो आई थिंक दैट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट अ लॉट। आई ऑल्सो, अगर कोई गेस कर रहा है, तो मेरी तो जो गेस है, या मेरा जो एजुकेटेड एक काइंड ऑफ हाइपोथेसिस है, वो ये है कि आई फील लाइक जो थ्योरीज की बैक स्टोरी है वो ये है कि ये एक बहुत ही हर्ट औरत होगी जिसके साथ बहुत जुल्म हुआ होगा, लाइक नेक्स्ट लेवल। और इसकी जो अब जिंदगी का मकसद है वो ऐसे कपल्स को ढूंढना जो जहाँ पे मर्द जो है वो इतना अच्छा नहीं है, और फिर औरत की आंखों में पट्टी बंधी होती है ना कभी कभी, जब वो नए नए रिश्ते में बंधी होती है, तो वो पट्टी जो है वो लैश करके खोल देना और एक्सपोज करना उस मर्द को। तो ये एक विजिलांटी फेम फटाल टाइप की चीज़ है जो मेरा थ्योरी है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक इन दिस इंटायर स्टोरी देर आर एलिमेंट्स ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ये सॉलिडारिटी में जो औरतें एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती है ना। तो जैसे वो जो उसकी नौकरानी है आसिया, हु इज अ ग्रेट एक्ट्रेस बाय द वे, रियली प्रॉप्स टू हर, व्हाट अ ग्रेट एक्ट्रेस, लव हर। I need to see more of her. She's We need to fabulous. see more of her. And this is what happens when you have a good supporting actor. Right. You have a good supporting actor in front of a woman like Sabaa Kamar, and then you see the magic unfold. Those scenes are so good. सबा का ऑरा इतना है, कोई और हो तो वो डूब जाए, वो ना वो मध्यम पड़ जाए, राइट। हाँ, शी हाँ। हैज सो मच स्क्रीन प्रेजेंस एंड पावर। आई मीन एंड ओह माय गॉड, ओके। पमाल में वो बेचारगी और शराफत की जिंदगी वो एक किस्म का ना, बट देयर समथिंग अबाउट बीइंग सो इविल एंड सो ग्लैमरस एंड सो काइंड ऑफ लाइक, अच्छा वो नहीं है कि जिंदगी मैंने बड़ी परवाह लोगों की अब मुझे किसी की परवाह नहीं। दैट्स द वाइब आई गेट फॉर हर। एंड वो तैयार हो रही, वो सज रही है, समर रही है, किसके लिए सज रही है, समर रही है? खुद के लिए, right? She's not in the least interested in that Zishan. In fact, वो कीड़ा मकोड़ा लगता है उसके सामने। What the? He's a pawn in her game. It's like a Yeah. game of like chess, murderous chess.
आई एम नॉट श्योर कि ही इज अ पॉन और नॉट, वो तो खुलेगी बात ना, लेकिन वो ना एक, आई थिंक दैट शी सीज सर्टन काइंड ऑफ मैन, तो वो देख रही होती है क्या चीज है, उसको मौका देती है। इट्स लाइक हम्म। वो हाँ कहते हैं हाँ ना, हाँ 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 हाँ। कान पे ना, वो खुद तो नहीं आपसे कुछ करवाते, वो सिर्फ आपके कान में को बात करता है। सो हम्म। एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स समथिंग टू डू विद, ये हम लोग तो कह रहे हैं ना एंट्रैपमेंट, राइट, कि वो काइंड ऑफ लाइक शी शिकार पे निकली हुई है, कि इस टाइप हम्म। का। I think it may be the other way around. It's a game of perceptions because हम्म। I think उनका नाम क्या है, अभी आपने डायरेक्टर का नाम लिया था, शकील खान, शकील जो खान. बहरूपिया के भी डायरेक्टर थे जी। Right. And he used a हम्म। lot of theatrical props and parde and stuff like that in हम्म। Behrupi. And I think या। this is something that थिएटर में यही होता है ना, आप मास्क पहनते हैं, आप कैरेक्टर्स बदलते हैं, आप अपना, हम्म। even if you're not a psychologically challenged person like Faisal Qureshi's character, na? हम्म। So what I think is that he's used all these ainas, as you've mentioned rightly, and या। all of the hint that this woman is putting on a mask, her true self is hidden, and या। it's a battle of perceptions in that, देखो वो उसको उनकी शादीशुदा जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए हेल्प कर रही है, हम्म। एंड सेज टू हिम कि जब भी तुम आए थे ज़ारा साथ नहीं थी, राइट, डिडंट आई, हम्म। राइट, या। या। लेकिन वो शी इज टॉकिंग अबाउट दिस मैन हैज हिज ओन परसेप्शन, वो इतनी मदद कर रही है, तो इसका तो मतलब है कि मैं तो इतना सजीला नौजवान हूँ, ये तो मेरे ऊपर फिदा हो गई है, एंड दिस इज या। व्हाट अ लॉट ऑफ मेन डू, हम्म। अनफॉर्चुनेटली, particularly in the subcontinent, ये वेस्टर्न मैन a little bit less, right, हम्म। because उनका कल्चरल डिफरेंस है कि आप ज्यादा 2 मिनट के लिए बात कर लें, आप कोई उनसे हेल्प मांग लें, कुछ हम्म। एक देयर इज अ खास ब्रीड ऑफ मैन दैट थिंक, ये तो फंस गई, ये तो मेरे पे हंसी आशिक तो हो, बसी। हंसी तो yeah, बसी। and हम्म। it is very true. You talk too much to a certain kind of man, and you हम्म। may be asking, भाई मैं फंस गई हूँ, मेरा टायर बदल दें आप, राइट, हम्म। मुझे ना ये काम आप कर दें, तो उनको ये गलतफहमी हो जाती है. एंड सेम विद women, I think it's a cultural symptom. Some women do that too, but हम्म। she is showing कि she was actually helping their relationship, एंड वो उल्ट उसके गले पड़ गई. Now, you see, I would have believed it was a manipulation if she hadn't committed suicide or whatever she did, right? So she ended up in hospital. You can't fake that. Do you think so? I think it was fake. Mm-hmm. I think it was fake. I think I it was staged. The whole thing was think staged. so. Mm. And I think we'll find that out maybe somewhere in Sure. the end. Yeah. Because I think that this kind of, I mean, I hope that they show that because I think that we need these kind of Yeah. stories. मजा We need a आएगा. long con story, Yeah. where we hark back and did you know that she did this and she did that. And also, I feel like, Fun. क्या कह रही हैं? मैंने कहा it might be fun, कि भाई we're so used to straight-laced women characters, थोड़ी सी ऐसे. हम्म. हाँ, जरा सा, थोड़ा सा मजा तो आए किसी कैरेक्टर को, उसकी उसकी किरदार की तहें खोल के उसको समझना, या जैसे मैंने एक चीज ये कही भी थी कि ड्रामे में, कि मुझे ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती, ड्रामे के बारे में, कि मुझे ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं जहां पे इंसान के अच्छे या बुरे होने के अलावा भी कोई बात हो। तो उससे क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है उसको ये एक बात समझाई जाती है कि देखो, ह्यूमन बींग्स आर नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट, ये जो ग्रे में कहीं हम एग्जिस्ट करते हैं, और समटाइम्स नॉट एवरीबडी डज द राइट थिंग एट द राइट टाइम व्हेन दे प्रेजेंटेड विद द राइट सर्कमस्टांसेस. समटाइम्स पीपल चूज अ विजिलेंटी path. Like I think that she's a vigilante in her own way. She's like kind of like um has her own like justice system where she dispenses justice. She decides Zishan is not a good person, therefore I have the right to interfere in their private life and sort of teach this girl that I think Nabil's very was doing really well. उन्हीं yes. इंतहाई selfish, खुद Hmm. self अच्छा. centered एंड like वो जो एक घोड़ा होता है, घोड़े के जो वो ब्लाइंडर्स होते हैं, उसके yes, बाद yes, उसको पता ही Conway. नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है. एंड आई लव द डायलॉग, like props to Imran Nazir for crafting this, because
in the dialogue, if you notice the exchange between Nabil Zubairi's character and Sabaa Kamar's character, like जहार और जीशान के बीच में जब एक कॉन्वर्जेशन होती है जब वो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, तो दैट कॉन्वर्जेशन इज सो टेलिंग अबाउट हाउ ही हैज बिन परसीविंग द होल वर्ल्ड. लाइक भाई तेरी बीवी तुझसे आजिज आई हुई है, वो प्रेग्नेंट है, वो इतना कुछ चल रहा है तेरी लाइफ में, तू जलील हो गया सबके सामने, और तू अभी भी उसका दरवाजा खटखटा. बट आपने मुझसे ये क्यों बोला था, आपने मुझसे ये बात ऐसे की थी, तो मैं तो आपको समझ रहा था. वो assumption है ना, as I said earlier, there is a type of man and may perhaps even a type of woman, वो आप उनसे 2 या 3 बातें कर लेना, can you help me with this keyboard, do you know this, right, वो पता चलेगा मेरे पे फिदा, right. हाँ मेरे बता. Comedic as it sounds, this is हम्म. absolute truth, इट because इज. in Desi Men. हम्म. देसी मैन. एंड व्हेन इट कम्स टू women, a lot of women are like this, that आप उनको अगर थोड़ा सा अच्छा उनके साथ हो जाएंगे तो वो समझेंगे कि ये तो पागल है, इससे तो और फायदा उठाओ, इससे उठाते ही रहो फायदा, ये तो पागल है, ये तो करते चले जा रही है मेरे लिए अच्छे अच्छे काम. तो ये वाला एक औरतों का जो एक ब्रीड होता है, वो यही वाला होता है ना बेसिकली. मर्दों को अपनी एक दूसरी चीज चाहिए होती है, और मर्द औरतों को ये चाहिए होता है. अच्छा, तो सदफ ओवरऑल कैसा लगा आपको आपको ड्रामा? आई जस्ट वांट टू गिव अ वर्डिक्ट दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई जस्ट विश दे वुड लाइक, वो कहते हैं ना एक फैब्रिक होता है जो ऐसे लूज लूज फिर रहा था, तो वो आप जब एक धागा खींच लेते हैं उसका, तो एकदम से इट हैज अ प्रॉपर शेप. I think that's where it's lacking a little bit, but otherwise, I think it's a very good story. It's my kind of story, something you can sink your teeth into and kind of like, all right, now I need to look forward to what's gonna happen the next week. That's the kind of story it is, and of course, Sabaa Kamar, like all hail the queen. What an actress, yaar! What an actress! Like too good. For sure. And she looked so, I mean, like so beautiful, right? I love her styling. It's not overpowering. वो थोड़ा Yeah, सा जब हमने फैसल कुरैशी वाला वो ड्रामा देखा था बहरूपिया, you had it issues was with that. overpowering, Yeah. right? जो, I mean, अच्छा, this is the thing with the highly talented performers, right? वो Hmm. इतना गुम होते हैं and directors भी उनसे डरते हैं that they can't like control. Whereas I felt that there was a lot of restraint in Saba's character. It could have been, बड़ा flamboyant और मैं तो बड़े बड़े वो नेकलेस, बड़े yeah, बड़े नेकलेस जो बहरूपिया में हमने देखे थे, जो उनकी अम्मा पहनी हुई थी, फैसल कुरैशी की अम्मा. रिमेम्बर? yeah, oh God. I mean, tell me you've never seen a rich person without telling Without telling me, you've never seen a rich person. So true. So true. And that gaudy makeup, I'm so glad that Sabah, I think Sabha whatever, to, whoever styled her, whether it's hers, the director, whoever, very well done. I really like Sabah's makeup also. yeah. बिकॉज अगर आप नोट करें तो, वरना इस तरह के रोल में बड़ा आसान है. आपने ये तीखा लंबा लाइनर लगा लिया, बड़ी बड़ी लैशेस लगा ली, उसने लैशेस नहीं लगाया क्योंकि उसकी आंखें इतना ऑलरेडी बोलती हैं कि उसको जरूरत ही नहीं है वो उस बड़े बड़े ड्रामेटिक She, आई मेकअप की. also, you notice that her look is it's the kind of thing that you do for yourself, and yet, वो नहीं है like a magnet. She's attractive. वो अच्छा, this is another thing with me. So many times हमें बताया जाता है डंडे मार के ये फैम फटैल है, right? ये 10 बंदे आके ना इस पे फिदा है ना, I'm gonna, okay, right? And then you look at हमारे Sabha ड्रामों में जो Kamar एक, and yeah, हाँ and अच्छा, और it हमारे ड्रामों में ही looks हमेशा like वो it. Yeah. छोटी सी चुन्नी काकी होती है, वो 16 साल की अल्लड़ दोशीजा, जिनको पता ही नहीं होता कि दुनिया नहीं, में क्या हो रहा है. वो सेपरेट, वो एक सेपरेट होता है ना कि वो तो भोलपने में सब कुछ हो रहा है, बट हाँ. देयर इज, आई थिंक सबा कमर काइंड ऑफ एग्जूड्स अ काइंड ऑफ स्टार प्रेजेंस, कि आपको हम्म. लगता है कि ये ना शमाएं और ये परवाने आके गिरेंगे उनके आसपास. देयर सो मच बिल्कुल. अट्रैक्शन टू हर पर्सनालिटी, एंड आई एम मैग्नेट. शी इज वुमन, लाइक अ राइट? मैग्नेट. हाँ Yeah. हाँ, So टोटल I टोटल think टोटल. they picked the right person for this role. Just I need, for me, right, I would have said कि I need shorter scenes. ना बड़ा मी टू. लंबे करती है. And I think हम्म. he was doing that. I think the director was doing that purposely because, सोचने का मौका दे रहे थे. कुछ एक स्टाइल होता हम्म. है director का. So that, but I really think Mama is a very important watch. And you know what? My husband was watching with me and he was getting increasingly uncomfortable. तो वो कह रहे थे, ये औरत कर क्या रही है? मुझे समझ नहीं आ रही.
ये क्या हो रहा है? And I'm like, Hmm. because and I think that it is going to confuse a lot of men, right? It should. I think Yeah. it a good drama should allow people to ask questions of themselves. And I think that Hum TV, with whatever good or bad that they've done, I think Hum TV has always taken that mantle forward. It has produced content which सदफ आई थिंक कि हमारे ड्रामों का जो एक ट्रूथ है ना, हमारे ड्रामों की एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तानी ड्रामा क्या है? वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन सोप नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामा टर्किश सोप नहीं है, कोरियन ड्रामा नहीं है, अरबी ड्रामा नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामा है। एंड वो मैं कहती हूँ कि ये सुल्ताना सिद्दीकी और हम टीवी की जो ये लेगेसी है ना, ये आपको ऐसे ड्रामों में दिखती है, मुअम्मा जैसे ड्रामों में, या ऐसे जो ड्रामे हमने पहले भी जिनका जिक्र किया है, कि ये तनमन नीलो नील की बात कर लेते हैं। तो ये वो ड्रामे सदफ जो हमें हमें याद दिलाते हैं कि गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दिस इज व्हाट यू वर एमिंग आउट टू, द स्टोरी यू वर एमिंग आउट टू टेल। अच्छा जी, कमिंग टू ड्रामाज दैट मेक अस थिंक and also make us want to bang our heads against the wall is Kafil. Sadaf, what was your take on Kafil? Okay, so and we'll connect it with Muamma as well, right? And I think you said at the beginning, you said something very strong, right? And that is ke, why do women, हम औरतें क्यों relate करते? Women मैं third party कह रही हूँ, I'm a woman, right? Why am I watching Feel? Why am I watching Muamma? Why am I watching Pamal? Right? Why do we relate? Because there is a limit, and this is where I like Sarwat Nazir and I like Farat Ishtiyaq and I like Sadia Fazal. You see, because they don't allow their heroines to wallow in misery. वो audience को ये luxury नहीं Did देती. you, sorry, I missed, did you include Umaira Ahmed in this? No, No, in this I list. didn't. Right. I think This is what Umaira you're coming Ahmed, to. yeah, उमैरा अहमद का ये है कि शी इज अ ग्रेट राइटर और वो Hmm. लिफ्ट करती हैं अपनी Hmm. हीरोइन को उनकी बिल्कुल, मिजर बाहर। वो बल्कि बिल्कुल। ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग परसोना हेरोइन को, वो एक स्कार नहीं बन जाता तो फिर वो हेरोइन जो है ना वो हील हो जाती है। तो Hmm. शी गोज फॉरवर्ड के मुझे नहीं इन चीजों की जरूरत। वो ठीक है, लेकिन कुछ आई थिंक गुड लॉन्ग एपिसोड्स वो मिजरी में ना वॉलो करती हैं, जैसे नहाती हैं उस गम और तकलीफ में ना। और बाल्टी हमने भर के, वो स्विमिंग शेर है, वो शेर है। हमने उनकी याद में रो रो के मटके भर दिए, वो आए नहाए और चल दिए। 100% आई ये थिंक दैट्स व्हाट उमेरा अहमद की हीरोइन की जिंदगी में यही हो रहा होता है। वो आता है, हीरो आता है, नहाता है और चल देता है, वो रो रो के मटके भर रही होती है आंसुओं के। what I'm saying is though we as women are very emotional creatures, not all women, but the majority, right? हम लोग इमोशनल है और हमें ना ऑल as वुमेन आई वुड से। women who are living 24 carat lives, and I'm not just talking about money, I'm talking about healthy happy lives, अदर, हाँ, अदर वो ब्लेसिंग्स और सडनली ना सपोर्ट, या नहीं ब्लेसिंग सपोर्ट बच्चे सक्सेस जो जो औरतों के मार्कर्स ऑफ सक्सेस होते हैं। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। लुकिंग एट उमैरा अहमद ड्रामा एंड दे गोइंग हाय अल्लाह मैं बेचारी, एंड आई एम लाइक नो यू आर नॉट। तुम्हें आपको तो पता ही नहीं है बेचार की क्या है। उसकी हीरोइन देखो, वो इतनी गुर्बत और पता नहीं किस जिंदगी में यू लिविंग दिस फैंटास्टिक लाइफ जिसमें हम्म। हर चीज आपके मुताबिक है, मियाँ आपसे प्यार करता है, यू हैव अ फ्री लाइफ, लेकिन व्हाई आर यू क्राइंग? एंड दिस इज समथिंग दैट आई one of the reasons that I turned off from Umaira Ahmed, because हम्म। she allows this self-indulgent wallowing in misery. हम्म। और कथार्टिक होती थी ना वो, कथारसिस वाले जमाने की राइटर हैं। जब वो रोए जा रही है, हीरोइन फट फूट फूट के रो रही, जितना वो रोएगी उतनी रेटिंग आएगी। इतनी कथारसिस की जरूरत नहीं नहीं है। सदफ, उमेरा उमेरा ने इवॉल्व नहीं किया सदफ। उमेरा ने राइट। इवॉल्व नहीं किया जैसे फरहत ने इवॉल्व किया, समीरा ने इवॉल्व किया। आपने, समीरा ने दास्तान टेलीविजन के लिए लिखा है, ठीक है, मेरा ख्याल से मैं उससे ज्यादा किसी ड्रामे पे नहीं रोई हूँ जितना मैं दास्तान पे रोई थी। ठीक है, आपके सामने और राइटर्स हैं। इमरान नजीर को देख लें, इमरान नजीर बड़े पुराने और बड़े मंझे हुए राइटर हैं। दास्तान जो था ना, दैट वाज अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि जो व्हाट वुमेन सफर्ड इन दैट सदफ, टाइम। लोग उसको अपनी आइडेंटिटी और ब्रांड बना लेते हैं, समीरा ने नहीं बनाया। समीरा हैज डन अ लॉट ऑफ बेटर वर्क एज वेल। बेटर से मेरी मुराद ये दैट्स नहीं व्हाट कि आई दास्तान
एक बेंचमार्क था। दास्तान was actually written by someone else. समीरा ने स्क्रिप्ट लिखी थी उसके लिए, उनका था ना, स्टोरी। रजिया भट्ट का नॉवेल था बानो। रजिया भट्ट जी। का, राइट, एंड इट वाज, हम्म। अगर वो मिजरेबल था, वो दैट वाज अ रियलिटी ऑफ वुमेन ड्यूरिंग पार्टीशन, राइट, बट मेरे समीरा कहने का ने मकसद ये बड़ी। है नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है, सदफ, कि इतना बड़ा ड्रामा जब आपके नाम के साथ एसोसिएट हो जाता है ना, तो आप उसी काइंड ऑफ आप रियलाइज करते हो कि अच्छा यार, मैं इस जोन में बड़ा अच्छा, इट्स लाइक अ बैट्समैन, जिसकी एक जोन होता है, वो एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो एक खास जगह पे पिच करता है, शॉट मारता है, तो वहीं पे हिट होता है। तो राइटर्स की भी ना, मुझे लगता, कभी कभी मुझे लगता है कुछ राइटर्स जो स्टक हो जाते हैं, मुझे लगता है उमेरा स्टक हो गई हैं। उमेरा ने इवॉल्व, उमेरा कुछ चीज़ें बहुत प्यारी लिखती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े अच्छे से खोल के ऑडियंस तक पहुंचाती हैं, बट उमेरा हैज़ नॉट इवॉल्व्ड, दैट इज़ द प्रॉब्लम। So what do you think of, because I asked you, off screen, who's the Hmm. villain of Kafil? Yeah, that's a good question, and I also will ask you about. You said something about Zeba. I'll come to that as well. Please remind me in case I forget. Yeah, Uh, sure. I think the villain in the story is um, द अब जैसे वो जो लड़का है, Hmm. वो उस लड़के को बनाया विलन है, तो उस लड़के की विलनी जो है ना, उसकी एक बैक स्टोरी भी नजर आ रही है मुझे, मतलब मुझे उसका कहीं ना कहीं रीजन समझ में आ रहा है। ऑल्दो आई डोंट लाइक दैट बॉय, बट इमाद इरफानी के कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। Hmm. बट उसकी विलनी समझ में आ रही है आपको, और वो विलनी उस फैमिली के उस निग्लेक्ट भी नहीं कह सकते, खैर, इग्नोरेंस, आई थिंक द विलन इज इग्नोरेंस। No, I don't. ओके, व्हाट इज योर टेक? And this is not a trap. वो नहीं है वो, do you know the capital of Berlin? और आपको पता होगा Yeah, कि it's perspective. It's there is no capital of Berlin, but right? So Berlin is the capital, right? हाँ हाँ, Right? no, this is a perspective question. Like, this is a opinion. My opinion is that Because it's ignorance. no, I think it's materialism, because that is what That's a good it one. happened. It has happened in front of my eyes. You see, Yeah, one that's of what I wanted to ask you about. Like, you mentioned something in your tweets hmm, about you have seen, because a lot of people were like, "Ye kahan hota hai?" Even I was kind of out yeah, there, but you said something that you've seen stories like Zeba's. So what not was that? story. I mean, it just happened last year. Oh Right. God. And this is when I was watching, I was like, nahi, ye nahi ho sakta. And then, suddenly the wheels and the gears in your mind start clicking, and you're like, oh my God, Oh my this God. just What was happened. the story? It was like over Okay, it's paisa. very similar circumstances and very recent. तो अभी मेरे कुछ जानने वाले हैं, तो उनकी बेटी का रिश्ता हुआ, एंड द मदर, आई केप्ट आस्किंग द मदर, अच्छा लड़का क्या करता है? हाँ, वो कुछ उनकी ना किराए पे कुछ आता है, वेरी वेग रिस्पॉन्सेज. Hmm. And Hmm. I'm saying to the girl, I called up the young lady in question because I was close to her, and I said, अच्छा तो आपने बात की है? नहीं, मामा ने मना कर दिया. And there is a background to that कि भाई, एक तो उस लड़की के रिश्ते छूट गए थे, because वो arguments पहले ही शुरू हो जाती हैं आजकल ना. So the mother had said, ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है, and you're not allowed to talk to him, and she agreed. This is Hmm. a graduate from a top university, by the way. So Hmm. this, all of this happened, and everything's very vague, and you're saying like, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, ये लड़के की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. बट द थिंग दैट कनेक्टेड इट टू कफील वाज, पूरा खानदान अमेरिका में है. बस Hmm. एक लड़का जो है ना, वो और उसका बाप, या उसकी माँ जो है, दे दे लिव इन पाकिस्तान. दैट्स Hmm. इट, राइट, एंड Hmm. you're like, what is the attraction, and you're thinking, click 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 के भाई, इतनी पढ़ी लिखी आपकी बेटी है, तो आप इस लड़के से क्यों रिश्ता करें जिसकी क्वालिफिकेशंस का कुछ पता नहीं है, ही इज नॉट वेरी वेल्थी. एंड इन द बैक ऑफ योर माइंड इट क्लिक्स, द पूरा खानदान अमेरिका में. एंड द सेम डायलॉग, भाई इनके घर में तो बड़ी पैसों की रेल पेल है, बड़ी बड़ी Hmm. गाड़ियों में आते जाते हैं. And then you begin to understand, and that's exactly what happened. But because this happened in these days, a divorce within a week, right? So but the time in Kafil, we see that the girl is quiet, which I still don't understand why she's quiet, why she's not telling her mother and her father. Hmm. And the Hmm. villain in the story is not Jami, it's the parents, right? Ek to, I think the father less so, but the mother more so.
right? I think one of the things about Umaira Ahmed is because I used to hate the way she used to write about elite class, but she is very good at pointing out खामियां of all classes. जहाँ हमने उनकी बुराई की कि भाई sometimes she wallows in misery, जो उनकी अच्छाई और superior qualities Yeah, but है, she's a great writer. She she just hasn't moved from that zone where she's really good. right And नहीं she's she and hits the the target. industry has moved on. The industry has moved on from that. Yeah, sorry, नहीं आप नहीं क्या कह रही हैं? let's see how it turns out, but I think she uses a surgical knife to cut away ये सारी जो बकवास हम वो बनाते ऊपर से ना वो लेयर्स होते हैं जो हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रखे होते हैं, हमने तो नहीं किए, ये तो किस्मत खराब थी उसकी। एंड आई हैव लर्नड इट फ्रॉम हर, आई हैव लर्न फ्रॉम हर ड्रामास की किस्मत खराब हो सकती है, लेकिन इंसान खुद भी अपनी किस्मत को अच्छा, खराब और कर। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल वो है जो जामी की बहन है। बहन है कौन है? माँ है बहन है, कौन है? बड़ी आपा है, आपा है। बड़ी आपा है जिन्होंने पसंद किया होता है जेबा को, वो जो मीम से मोहब्बत में भी वो जो बनी थी, मैं वो तो कौन उसकी है? माँ को सारा ब्लेम नहीं दूंगी। नहीं, वो तो आप सही कह रही हैं। मैं उसके एक जुमले को पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ। जब वो कहती है, जेबा तुम अपनी अम्मी को फोन करके बोलो कि तुमने ये डिमांड की थी हम्म, फर्नीचर की। एंड that is where Omera excels, because है ना? she's able to kind of see through a lot of people's machinations, like how they are trying to वो जो manipulate you. वो ना एक पर्दे हमने नहीं, वो भोली थी माँ मेरी, वो भोली थी, वो ये आपा तो अपनी फैमिली को, क्योंकि there's a lot of desi excuses, right? As a someone who is from the brought up in the diaspora, I see right through them, right? Just as perhaps someone who is brought up in Pakistan can look at me as a diaspora person and say, hmm, थोड़ी मुनाफकत नहीं है यहाँ, right? जो भी This is हमारे, हाँ भाई, चीजें नजर आती होंगी। हाँ हाँ। right. So I go past all those, वो जो एक वेल्स या पर्दे हमने रखे होते, नहीं माँ का तो दिल था ना, और बाप का तो ये था, and I'm going absolute rubbish, right? You guys are just greedy, right? Y'all are आपको just greedy. you all are just greedy, right? You saw, आपने आना था माँ ने देखी, एक तो she is probably there's a history of her watching ये आप her friend being wealthy, वो भी कहती नहीं इनकी गाड़ियों की पैसों की रेल रेल पेल, रेल what is पेल है। हम्म। रेल पेल है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती थी, एंड सडनली शी इज थिंकिंग द होल फैमिली इज लाइक सेंडिंग मनी, तो शायद हम्म। इसका भी वीजा लग जाए, शायद इसका भी, वेरी सटली दे डन इट, हम्म। नहीं, बिकॉज व्हेन द डेविल स्ट्राइक्स यू ही डजंट डू इट सामने आके, वो आपके कान, एज आई सेड बिफोर, कान में थोड़ी सी हल्की सी बात करता है। वो सूरह नास का तो वो औज़ुबिर खलक़ नास इलाह नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मतलब ये जो खन्नास जिनको हम बोलते हैं ना, जो हमारे कानों में विस्पर होते हैं, जिससे हम पनाह मांगते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे ड्रामों में इस पे और ज़्यादा बात होनी चाहिए, बिकॉज ये एक इतनी कॉमन ट्रेट है, होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। लेकिन दीज ईवल विस्पर्स दैट पीपल डू, एंड देन दे समटाइम्स कम इन द शेप ऑफ पीपल हु आर so-called well-wishers. These so-called well-wishers who come and say the worst things to us, that either are manipulating us or हम्म, are pushing us. मतलब हमें नजर आ रहा होता है, कुछ लोगों का तो हमें नजर आ रहा होता है, मुझे पता है यार तू मुझे ये बात क्यों कह रहा है। कुछ लोगों का ना हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन राइट, वो विस्पर्स इतने मजे के होते हैं, इतने अच्छे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने, आई थिंक हजरत अली का कॉल है, किसका कॉल है कि यू हैव टू बी मोर अफ्रेड ऑफ द फ्रेंड हु इज ऑलवेज प्रेजिंग यू। यस आई थिंक हजरत अली का कॉल है, Hazrat Ali, right? Because your true friend is somebody who will tell you good things, obviously, but then who will also not be afraid to have a disagreement with you. बट अगर एक आदमी आपसे सिर्फ आपकी तारीफें कर रहा है, आपको कभी भी आपके बिहेवियर को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो वो कैसे दोस्त हो सकता है आपका? इट्स ऑल्सो दिस थिंग ना, एक औरतें जो है ना, एक उम्र वो ना बच्चियां ही रहती हैं, एंड यू सी एंड हम्म। बैक टू मोमा, राइट? Sabak Karma's character is a woman, right? हम्म। Call her a queen. We don't say she's a या princess. लेकिन या जो उसकी माँ है, क्या उसका नाम है, द मदर, एंड आई थिंक ब्यूटिफुली प्रेड वेरी वेल, कैसे अपनी बेटी की शिकायत लगा रही होती है बाप के आगे, हाय मैं हाँ। इसकी इतनी कर सकी, भाई तू चुन्नी काकी, ये तो बच्ची है, राइट? यू एन अडल्ट फीमेल,
अच्छा, एंड आई ऑल्सो थिंक क्या लाइक अपनी बेटी दिस से तो पूछ ले। एग्जैक्टली और वो उस पूरे सिचुएशन में जब वो उसके पीछे पड़ी होती है, जब रिश्ता अच्छा आया होता है, जब उसको ये रुमाल वाला मसला नहीं होता, आई विश दैट उमेरा हैड ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द मदर्स ग्रीड काइंड ऑफ प्लेइंग अ रोल इन टू इट, दैट इट्स देखो बेटी ने भी मौका दे दिया, रिश्ता भी अच्छा है, बहुत अच्छी You जगह है think अगर छक्का वो, मारने का. and this is a good question for everyone who is watching this, and I think to उमेरा अहमद's credit, क्यों उन्होंने ना ये चीज सामने नहीं रखी कि जैसे ना हम्म. ठोक के हमें बताएं that is a villain's hat, that is a innocent heroine's hat ना, हम्म. उन्होंने दिखाया हम्म. न्यूएंसेस एंड ग्रे शेड्स कि वो जो मदर है उसको नजर आ रहा है कि पता नहीं ये इतना शानदार रिश्ता है, हाथ से ना निकले, तो वो मौका उन्हें मिल जाता है जस्ट बिकॉज आई वंडर इफ शी वुड हैव शोन द फादर द लिटिल, वो रुमाल के ऊपर जो छोटा सा खत था, इफ शी हैड हम्म. शोन द फादर, अगर ये रिश्ता ना आया होता मे बी शी वुड हम्म. हैव क्वाइट, लेकिन उसे तो मौका मिल गया था Yeah, I बिकॉज wish that had been explored a bit more. That's a really interesting angle to look into. And I think एक ड्रामा आया था हब्स, जो था नूरा मखदूम की जो बहन है, उन्होंने लिखा था, आलिया मखदूम ने लिखा था, और वो बहुत अच्छा ड्रामा था. उसमें जो कि एक सरसरी तौर पे कुछ राइटर्स एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने घुस गए थे वो उस माँ के कैरेक्टर में, प्लेड ब्यूटीफुली बाय सबा फैसल. उन्होंने उस कैरेक्टर को देखा था कि ये माँ जो है ना वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही, वो इतनी उलझ के एक कभी कभी ऑलमोस्ट नॉन ह्यूमन तरीके से बिहेव करती है अपनी बेटियों की तरफ, जिसकी वजह से हर बेटी अपना एक सर पे बोझ लेके खड़ी हो जाती है, और मुझे लगता है कि हमारे ड्रामों में थोड़ा सा करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आई थिंक शायद वो ये दिखाना नहीं चाहते कि माएँ गलत हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा था. और मुझे लगता है इस ड्रामे में भी वो कहीं ना कहीं एलिमेंट है, बट पूरा नहीं है. जैसे यही बेचारी हमारी जो मुनज़्ज़ा आरिफ नाम है आई थिंक इनका एक्ट्रेस का, ये दिल वाली गली में भी इनका कैरेक्टर काफ़ी ऑफ ऑफ सी अम्मा थी ये. हालांकि वो ड्रामा इतनी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, वो इतना प्यारा ड्रामा बन सकता था, वो उन किरदारों के साथ इतना मजे का बन सकता था. इनकी परफॉर्मेंसेस इतनी जबरदस्त हैं, देखो शेर में थी, और मुझे हम्म. याद है इनकार में उन्होंने कितना हम्म. villainous, और इनकार जो डू यू रिमेम्बर वे बैक यमुना, युमना, इमरान अशरफ, समी खान. राइट, और उसमें शी इज द शहर वाली बीवी जो उस लड़के को शय उसने दी होती है टू, हम्म. विच हम्म. लाइक, राइट. हम्म. तो आई थिंक शी इज अ वेरी वंडरफुल एक्ट्रेस, वंडरफुल एक्ट्रेस. एंड करना आई चाहिए. थिंक वो जितने मजे से वो उस तरह के जुमले बोल देती है ना, अच्छा तो क्या हो गया, नहीं ये तो हमने देना ही था, अच्छा मजे की बात ये अम्मा इस पे भी नहीं पिक कर रही है. रेड फ्लैग समझने वाली बात है कि वो बेटी बता रही है कि ऐसी उसने बात कही है, तो अच्छा ये तो हमने देना ही था, नहीं नहीं हम दे देंगे, यार ये मतलब उछलने वाली बात है, और Notice, वो चिल है बिल्कुल. you know why? Because there's no relationship between माँ बेटी. वो माँ सिर्फ हम्म. पुलिस है या केयर टेकर, खुद तो वो बच्ची हवलदार. है, वो चुन्नी ची काकी बच्ची है, उनको क्या पता हो कि भाई बाकी की दुनिया कैसे जी रही है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ वो व्हाई आई डिसलाइक दिस वॉलोइंग. शी इज एक्चुअली गॉट अ गुड लाइफ, शी गॉट नो हम्म. एक्सक्यूज, बड़ी अच्छी नो. जिंदगी की, कोई जुल्म मियाँ ज्यादती अच्छा नहीं. है, हाँ बच्चे अच्छे हैं, बेटी इतनी पढ़ाकू, इतनी जबरदस्त. एंड I also like we have to move on to another drama also, but like I हाँ, do want to नहीं, talk बट about that सलीम woman. सईद का कैरेक्टर भी तो डिस्कस करें. मुझे ये हो रहा था कि व्हाई इज शी नॉट टेलिंग हर पेरेंट्स, इज इट Why do गिल्ट, you think? इज इट गिल्ट फ्रॉम द लेटर, और इज इट बिकॉज शी, क्योंकि इट इज अ कंजर्वेटिव हाउस होल्ड, इज इट बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड मदर. I think it's because एक वो मेरा की हीरोइनों के साथ ये कभी कभी होता है, रिजाइन टू द फेट. अब तो यही है. मुझे लगता है कि एक खास किस्म की औरत होती है ऐसी, अब शायद इतनी नहीं होती, लेकिन वो जिस एरा की, क्योंकि डोंट फॉरगेट दिस इज स्टिल अब पुराना जमाना दिखाया हुआ है उन्होंने, किसी ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि जी ये 90s का है, क्योंकि कंप्यूटर वो पीसी जो होते थे डेस्कटॉप बड़े बड़े मोटे व्हाट मोटे. इज दैट, वो एक खास वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था उन दिनों वो में. बड़े वाला डब्बा जो होता था, सीपीयूज जो होते थे, वो सीपीयूज वाले जमाने के इंटेल के जो कंप्यूटर्स होते थे, तो वो पीसी जो थे उस जमाने का पीसी, और बड़ी अच्छी, वेरी वेल डन बाय मीसम नकवी टू मेक श्योर के टू हेल्प अस अंडरस्टैंड वेयर दिस एरा इज विदाउट ब्लास्टिंग इट इन. वरना एक होता था जी 1992 का वर्ल्ड कप जरूर दिखाते थे ये हम जीते थे, देखें इस वक्त की कहानी है, वरना वो इतना इन योर फेस होता है. हालांकि दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट टच, मगर वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप ऑडियंस
को समझा ही नहीं पा रहे हैं किसी और तरीके से, बड़ा सटल रखा मीसम ने कि ये देखें, ये मोमेंट्स देख लें, इससे पता चल रहा है वो, जैसे अगर आपको याद होगा एल्कट, आपको नहीं, आई डोंट नो आपने देखा है नहीं, पाकिस्तान में एल्कटेल के फोन होते थे, तो दोनों खानदानों की जो सोशल क्लास डिफरेंशिएट उन्होंने की थी, जिनके पास एल्कटेल के फोन होते थे ना, वो डिजिटल वाले, वो थोड़े अमीर होते थे, और जिनके पास वो घुमाने वाले ढब्बड़ ढब्बड़ वाले फोन होते थे वो रोटरी गरीब होते थे। रोटरी स्टाइल का, या हाँ, रोटरी फोन होते थे, वो थोड़े से गरीब होते थे। तो तो सनम के घर में जो है वो पुराने वाला फोन है, और जामी के घर में नया वाला फोन है, एल्कटेल वाला, डिजिटल वाला। तो वो बड़ी अच्छी मुझे टच लगी, मुझे वो लगा कि यार ये, क्योंकि मेरे घर में भी जब मुझे लगा था अच्छा अब हम थोड़े अमीर हो गए, तो हमारे घर में एल्कटेल का फोन आ गया था, वो वाला डिजिटल फोन आ गया था। I kind of, and this is why I didn't want to move on, because देखो मीसम नकवी ने कितनी केयर से इतने इतने छोटे छोटे जो आपने पिक किया डिटेल वो डाले हुए हैं। सो एंड हम्म। आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा सजा दिया है, शायद मैं ना देखती ये ड्रामा हाँ अगर हाँ। ये ना सजाया होता। और आप राइट। एक बात तो माने सदफ, ये 9 बजे वाली कहानी है, ये नौ अच्छा। बजे वाली कहानी है। मैं बता रही हूँ, अगर ये आपके सामने बेचारी, वो हमारी बड़ी अंडररेटेड एक्ट्रेस है लाइबा, या इस तरह की आजकल की जो नई बच्चियां हैं, जो या जो आजकल के लड़के आ रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, जिनमें से मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग, कोई खास नहीं लग रहा जितने बच्चे आ रहे हैं, सिवाय वो बच्चा जो सनम के ऑपोजिट लड़का है, जो कफील में ही है, जो क्या He's नाम था उस लड़के also in another का? drama. चालबाज। Chalbaz, yeah, I've हाँ। seen him in that, and what a difference a hairstyle can make. But I'm gonna say कि अच्छा नोटिस किया, वो ना एक वो एक लंबी दास्तान इश्क की नहीं बनी, वो लड़का डर गया उनके घर हम्म। जाके, उसने मना भी रिश्ता कर दिया। राइट, ही हम्म। डिडंट से कि बस मैंने इसी लड़की से करना है, या अच्छा चलो वो जो टिपिकल हमारा 7 o'clock ड्रामे का ये होता है, मैं इसकी बहन से कर लेता हूँ। अच्छा, और एक और भी स्टूपिड एंगल होता है 7 o'clock या 9 PM वाले में, हाँ। दुश्मनी में कर लेता हूँ, हम्म। इसने मुझे छोड़ा कैसे, मैं तो अब इसकी बहन से ही शादी करूंगा, वो कहते हैं ना मैं राइट। तो होंडा ही लेसा, तो ये वो वाली चीज हो जाती है। पंजाबी वाला आप करे ना, मेरी मैं पंजाबी इतनी है सदा, बंद करो ये नंगा खैर, ये तो चलो उर्दू हो गई, बहुत बट अच्छी है पंजाबी मैं आपकी। मैं तो होंडा ही लेसा। तो मैं बता रही हूँ हाँ। ना, मुझे वो एंगल अच्छा है, लेकिन है ये 9 बजे वाली कहानी सदफ, हम्म। ये 9 बजे वाली कहानी है। पापी दुनिया, जालिम अम्मा, मैं वफा की पुतली, मेरे माँ बाप की इज्जत में कोई नहीं, कमी ना आ जाए, कमी ना आ जाए। मीसम नकवी ने ना थोड़ा सा उसको वो न्यूएंस आई थिंक, एंड आई थिंक दे प्लेड इट विद रिस्ट्रेंट, इसलिए हम देख रहे हैं। वरना अगर वो उन्होंने ना वो जो जुल्म की हांडी घोलनी है ना, वो तो मैंने नहीं देखनी। आई जुल्म एम की सो, हलीम, जुल्म की हलीम, हाँ। गोल गोल के ना, अच्छा थोड़ा सा और गम की जुल्म निहारी, जुल्म की ये, हलीम, और दुख के पाए, तो ये सारे हमारे नाश्ता रेडी होता हमारा। और क्या है, और क्या, women are more than this, women have more dignity than this। ठीक है। तकलीफ के उसका नान, तकलीफ हम्म। के नान और जुल्म के चने। हम्म। तो ये हमें तकलीफ के नान और जुल्म के चने खिलाने के, आप और पहले सदफ एक भी और आ रहा है समझाए, मुझे ना। मत हंसाए। मैं पछताए। आपको, सदफ हंसना जरूरी है, हमारे पास अगला ड्रामा पामाल है, पामाल में तो जो जुल्म के नान चने बिक रहे हैं, हाय 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 हाय। Oof. Well, Do you do you do you have anything more to say about Kafil? I think we need to praise Sanam Saeed for sure, but also again, I feel like Sanam, while I love her, I feel like she needs to get rid of that tone of voice for her. Like I No, love I think her. she's amazing improvement। पहले तो उनकी बहुत अच्छा। स्टक्कातो सी आवाज होती थी। हाँ, मैं तो दाम और पता नहीं उनके कौन कौन से ड्रामे देखे सारे ना। ही, सब में। बिलीव इट और नॉट, मुझे जीजीएच इतना पसंद नहीं था, क्योंकि आई डेंट लाइक द कैरेक्टर, बट सनम सईद herself is brilliant actress। बट Brilliant actress, but does not do anything for her tone. वो It's the टोन same tone. इंटोनेशन वो आई थिंक वो अभी भी उनके बस से बाहर है। Sabah को देख लें. Look, I'm not asking her to change her voice, but I'm saying, like, look at Sabah in Pamal and look at Sabah in Muamma. There is, even though she's like, there is a dialogue in Pamal where she says, "Raza, मैं आपके बगैर कुछ नहीं करना चाहती." The way she says that, and in Muamma where she says, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं थे, तो मैं उसका बच्ची का जाबी जो भी नाम होता है, मैं उसका कितना ख्याल रखता, आसिया का किसका था जो भी, समथिंग, या नहीं, आसिया तो उसकी नौकरानी होती है, वो जो दूसरी लड़की सारा होती है, सारा गॉश आई थिंक जारा अभी सारा जो भी,
Yeah. हाँ, we're so bad with names, my God. तो उसका मैं इतना ख्याल रखती थी। तो ये एक्टिंग इसे कहते हैं जिसमें आपकी आवाज तो नहीं बदल रही है। खैर बहुत अच्छे एक्टर्स या बहुत कुछ गिफ्टेड लोग होते हैं वो अपनी आवाज भी बदल लेते हैं। डैनियल डे Yeah, my लुइस, point is that that is part of the actor's toolbox, isn't it? कि वो rising and lowering your मतलब tone, डैनियल डे etc. लुइस तो आवाज बदल लेता है यार। इफ यू लुक एट हिम, हियर हिम इन देयर विल बी ब्लड, एंड इफ यू लुक एट हिम इन लिंकन, ही इज इट्स टू डिफरेंट पीपल। लेकिन we can't expect Daniel Day-Lewis हाँ to फॉर आर टीवी। but let's appreciate Sanam Said for what she's doing. I think she's doing a great job in this. असल में she cannot change the script कि भाई वो क्योंकि मुझे उस पे गुस्सा है. Why are you not talking to your mother? Why is this lack of communication? क्यों एक दूसरे से नजरें छुपा रही हो? Right? And नहीं that मैं, idiot woman, वो हाँ, फोन कर रही है अपनी सहेली को. She's not your friend. हम्म, हम्म। अच्छा, मुझे सनम का यही है लास्ट नोट ऑन फॉर हर एक्टिंग इज दैट सनम इज गुड इन सीन्स वेयर शी हैज टू, यू कैन सी हर balancing a juggernaut. You can see her kind of walking a tightrope where she has to not betray her emotion, not act like I am devastated that I am married to such a loser, But why and not? This is what I'm trying to figure out. Why can't she say that? because I think it's the era. It's the era of people where we had that thing. And I think Omera is kind of looking back at that era. Omera is making a comment about a certain way women were expected to behave in that time. And they were expected to not speak up for the things they were going through. Okay, and I will go the opposite direction and I will say that the most terrible prisons are the prisons of the mind. She can speak. Hmm. वो सब कुछ कर सकती है लेकिन psychologically she's limited herself कि Do यही you think मेरे. it's because, sorry, I'm cutting you off. Do you think it's because she realized that she's been betrayed by her parents? So she's like punishing herself or punishing them? Yeah, I I don't think know. she's वो ना दिल उसका टूट गया. She was in a fantasy. थोड़ा सा दिल Hmm. तो that also she kind of feels like मेरी गलती थी. You know what I mean? कि she didn't question. See, having seen a lot of these kind of forced marriages and things, right? That's why I feel empathy in this That's case. so sad. You notice हमने तो आपसे पूछा था. Yeah, there were 20, 30 people saying this is the right thing. And you couldn't really say no without a good reason. And also there was an atmosphere in those days, particularly in dramas, Bollywood, हमारा literature, कि good girls do this, right? मैं यही तो And बोल रही हूँ, मैं यही तो yeah, बोल रही हूँ कि उस जमाने की एक औरत की एक एक्सपेक्टेशन थी, बेटा yeah. मर के निकलना इस घर से। अब हमारे वाले कहते हैं मर के निकलना या मार के निकलना। तो वो फर्क है ना दोनों के मैसेजिंग में। जो मैसेजिंग मिल रही है वो गलत मैसेजिंग थी भाई, कि क्यों मर के निकलना वहां से, क्या मौत आ रही है ऐसी कि भाई वहां से मर के निकलना। नहीं भाई, There is absolutely no reason why नो, she had to stay with that guy. She could बिल्कुल। say नहीं. उन दिनों में भी तलाकें होती थी, सब कुछ होता था. But it is the prison of the mind is sometimes greater than the actual prison walls. ठीक है। सॉर्ट ऑफ कमिंग टू पामाल, प्रिजन ऑफ द माइंड। पामाल एक प्रिजन है जिसमें सबा कमर बेचारी रह रही है और अब वहां से निकली है और I can understand. देखो वो आदमी and it's such a nuance इसने कि भाई उसे मोहब्बत भी उसी से है, नफरत भी उसी से है. And now I'm looking back at that scene that Khizr Adris did when he dies in her lap. It's not just release for Raza, it was almost like a release for Sabaa Kamar's character. It मालिका। was, yeah, मालिका के लिए भी रिलीज थी. आई थिंक इसमें जो वो अब उसकी स्ट्रगल और वो सब दिखा रहे हैं, आई थिंक हमें ये इम्पोर्टेंट है। मैंने सुना है कि एक दो एपिसोड्स ही और रह गई हैं, तो आई थिंक वी फाइनली विल रियलाइज व्हाट हैपन। आई थिंक ओवरऑल पामाल की स्टोरी, अब जब मैं उसकी पूरी कहानी देखती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कोई ये किस्सा अपना सुना रहा होता कि ये मेरी मेरी शादी हुई थी, मेरा हस्बैंड ऐसा था और फिर मैंने यूं किया, मैं वो किया, मैं भी यही सवाल पूछती, भाई आप छोड़ देती, आप गोली मारो ऐसे इंसान को और निकलो वहां से। लेकिन मैं जैसे कभी कभी ये भी सोचती हूँ, मैंने फिर वो कुछ सीन्स दोबारा देखे जिसमें वो उससे बैठी हुई है, बातें कर रही है, राइट व्हेन ही इज अबाउट टू डाई और समथिंग, एंड आई फील लाइक वही आपकी वाली बात, प्रिजन ऑफ द माइंड। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको मजबूरी में, पहले मजबूरी होते हैं और पहले वो किसी और की तरफ से आती है मजबूरी, माशरे की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, सोसाइटी के रूल्स की तरफ से। फिर आप वो मजबूरी अपने अंदर इंटरनलाइज करके उसको एक अपनी प्रिजन ऑफ द माइंड बनाते हैं। तो आई थिंक इट वॉज दैट स्टोरी।
Very good point. Lekin, okay, shall I add to that? I know प्लीज. the thing with these kind of narcissistic people, and obviously कि उसके पास वो vocabulary या अल्फाज नहीं थे जो वो छोटी भी describe। थी वो. हम्म. हाँ, छोटी भी हम्म. थी, वो तो हम सबक को देख रहे हैं ना, बट वो दिखा रहे हम्म. हैं कि छोटी उम्र की लड़की थी, वो उन्होंने बताया। सो व्हाट हम्म. हैपेंस इज के वो इतनी वो ना बैलेंस हो जाता है। आप कंफ्यूज रहते हो, मोहब्बत भी तो इतनी कर रहा है, राइट, एंड एट द हम्म. सेम टाइम वो इतना सख्त है। सो विद दीज नार्सिसिस्ट वो ऐसा कंफ्यूज दूसरे बंदे को कर देते हैं, एंड दैट इज द गेम, इजंट इट? राइट, वेदर इट्स अ हम्म. फीमेल नार्सिसिस्ट और इट्स अ मेल वन। अगर आप देखो ना कि सबा कमर अगर वो जो मुअम्मा में थी, इफ शी हम्म. वाज अ शी कुड हैव सेड मैंने तो नहीं किया था, मैंने तो आपसे, यू नो व्हाट आई मीन, इट्स इजी टू हम्म. मैनिपुलेट पर्सन लाइक दैट हम्म. Nubeel character. हम्म. So what I'm saying is that she's on the balance of it, she's thinking I'd better stay with him क्योंकि प्यार भी तो कभी कभी करता है, तो मे भी इतना बुरा नहीं, और माशरा में बताता भी है ना कि वो इतना बुरा नहीं है। देखो ना, रोटी मिल रही है खाने को, कपड़े मिल रहे हैं, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा नाम है, और फिर तुमने ही तो चूज किया था, पसंद किया था इसे, राइट? और शुरू सो में तो तुम इतने गुन गाती थी. हाँ, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर सो कंफ्यूज, आप अपने आप को सेकंड गेस करना शुरू कर देते हैं, नहीं मेरा कसूर होगा, इफ आई मॉडरेट माय वॉइस इनफ, right? I know it won't, I know of like men who have been tricked in this way. Okay, they're not हम्म. sure that their wives love them, but you know, कहते हैं "वो मुझे बिन बताए हॉलीडेज चली जाती है, लेकिन जब होती है ना घर पे, तो मेरे लिए खाना रोज रात को बनाती है, तो अच्छी बीवी होगी ना, बट हम्म. no way she went on holiday and who with and that, या. so this is how narcissists play with your mind. या. एंड इट्स ऑल्सो वेरी, जैसे मैंने खिज़र इदरीस का एक इंटरव्यू में कहीं वो कह रहे थे कि वो बुली हुआ था तो उसके लिए दूसरों को कंट्रोल करना इज़ अ वे ऑफ कोपिंग विद दैट एक्सपीरियंस एंड Hmm. एवरीथिंग. एंड आई जस्ट वांट टू से कि दैट Yes. कैन वेरी वेल बी ट्रू. हाँ, क्या कह रही Who हैं? cares? I don't हु care. केयर्स, वो तो खैर यस, बट लाइक आई थिंक ये जो हमारा एक एक्सप्लेनेशन लोगों के लिए बनता है कि क्योंकि उनके साथ ये हुआ था, चूंकि चुनाचे, विच इज फाइन. आई डोंट से दैट इजंट वैलिड. what I am saying is that can lead into somebody developing a narcissistic personality disorder. What happens and why it happens and why somebody's behavior is the way it is an explanation, but the diagnosis or the explanation of what it is to be him and why that person is being that Hmm. is, मेरे लिए आपके साथ बहुत जुल्म हुआ बचपन में, सॉरी, रियली सॉरी टू हियर that doesn't give you the excuse. And I'm not going to sit and like कि अच्छा बचपन में आप मंडे की मॉर्निंग में जब आप स्कूल में गए थे तो वहां पे किसी टीचर ने और किसी बच्चे ने आपको ऐसे कर दिया था. ओके, टॉक टू योर थेरेपिस्ट अबाउट इट. डोंट ले योर ट्रॉमा बर्डन ऑन मी. ठीक है, मेरा मेरा कसूर नहीं है कि आप मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि ये नार्सिसिस्ट है, और मिलिग्नेंट नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं, साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं, सोशियोपैथिक नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं. तो मुझे लगता है कि जब किसी राइटर ने भी इस तरह बात की थी कि जी माएँ जिम्मेदार होती हैं नार्सिसिज्म की, आई रियली वांट टू प्लीज, if anybody is listening माए to तो this, जिम्मेदार फॉर एवरीथिंग, वो आज फॉर ब्रेक पर एवरीथिंग है. माए हाँ, 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 तो वो तो है ही ना, हम सारा कसूर ही हम में. climate change is due to mothers, right? हाँ, बिल्कुल, एवरीथिंग. टेक्टोनिक प्लेट्स भी हम ही शिफ्ट कर रहे हैं सारी दुनिया में. तो मगर बात यह है कि साइकोलॉजी के हवाले से बात करते हुए, किसी पर्सनैलिटी की साइकोलॉजी के हवाले से बात करते हुए, प्लीज ये अंडरस्टैंड करें कि कोई भी बंदा जैसा भी वो निकला है, इट कैनॉट बी हम्म। अ वन पर्सन जॉब. एंड if it's a single parent, then you have to look into more things than maybe the mother is doing everything that she can, but there are things that she won't be able to do, but it's not her fault, you know. So I like, anyway. Saraf, is there anything else you want to add about Pamal?
Amal, I think that it's beautifully done. I really appreciate Sabaa Kamar's acting. Usman Mukhtar, both of them deserve an award for this. I mean, like when we do our thing, right, they're number one there. But I just wanted to mention, I found it fascinating the way that Sabaa's character Malika, वो जाती हैं, वो उनको पोजीशन मिल जाती है वहाँ, वो किसी स्टूडियो में, आई थिंक ग्रीन का दिखा रहे थे, बिकॉज ग्रीन का ही दिखा रहे हैं, वो काबली पुलाव का पोस्टर वोस्टर सब yeah, था, I हाँ। saw those things. So I हाँ। was thinking, वो देखो वो कह रही हैं, and I think Zanjabil Asim has said that it's slightly autobiographical. Some elements of her life are in this, right? So हम्म। you see that, but when you leave the house, she's not prepared for the kind of pushback from men because बिग it's a बैड male. वर्ल्ड। Yeah, हम्म। she's not हम्म। prepared for it. तो गुस्से में आ जाती है, घर आ जाती है. But so I wanted to say कि I really appreciate the women that go out there. वो handle करती हैं इस type के बदतमीज लोगों को and lot more, and they make their careers and they make this. तो is it enough? वो ठीक है, लेकिन not everybody can afford that, and yet girls handle it every day. एंड आई You थिंक know. देर इज आई थिंक गूंज एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, गूंज उस तरह Hmm. पकड़ नहीं सका, वरना वो इशू उसमें बड़ा अच्छा उठाया था। आई थिंक एक जो बड़ा कॉमन ट्रोप है जो कि सही है, एग्जिस्ट करता है, ये जो हरासमेंट वाला ट्रोप है या औरतों की शेमिंग का वाला ट्रोप है, वो तो एग्जिस्ट करता है। मुझे लगता है इसमें और भी नुआंसेस हैं, और भी Hmm. प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे ड्रामों में बात करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिजर में, आई कीप गोइंग बैक टू हिजर, हिजर में इसको Oh, थोड़ा सा, Hijr was such a हाँ, Hijr and Kamal are kind of like twins for me. So yes, yes, absolutely. And I just wish that Kafil doesn't turn into a Pamal. ये जो सौप, खैर होगा सौप फेस्ट ही, we're in for a सौप fest, नहीं we नहीं, know that. there's a difference. There's a difference between, देखो जामी जो है ना, आई लाइक जामी, वो कुछ और नहीं है, वो बस जामी है. वो कोई गेम नहीं प्ले कर रहा. He's just bad, right? He I just want to say another word, but he's just bad, right? उसने कोशिश ही नहीं की कि मैं अच्छा बनूं. हाँ And चलो। people like Jami are easy to handle. People like Raza are very difficult because they play mind games. एक लम्हे में आपको कहते हैं मुझे आपसे ही मोहब्बत है, आई कांट लिव विदाउट यू, एंड देन दूसरे लम्हे में दे ट्रीटिंग यू लाइक डर्ट. जामी तो हर वक्त बदतमीज और नास्टी है. बट जामी, मुझे लगता है ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप से ऐसे झूठ बोलते हैं जो जो आपकी जिंदगी का, जो दूसरों के लिए ज्यादा मुसीबत होते हैं। आप तो अपने से झूठ बोल के डेलुलू में जी रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोगों की जिंदगी आपने तबाह बर्बाद की हुई है अपने झूठों की वजह से ना, वो एक अलग ही मिजरी होती है। सदफ, वी हैव Where टू, is he lied to her? Where is Jami lied to her? See, and this is why we need to take these pretenses off. Jami ने झूठ कहाँ बोला? हाँ, झूठ उससे नहीं बोला, लेकिन आपको नहीं लगता वो खुद से भी झूठ बोलता है? उसको लगता है कि वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो because she's allowing it for men. This is why I say that prisons of the mind are worse than actual prisons, right? She's allowing it. वो किसने कहा उसे? किसने, उसके माँ बाप ने क्या, वो किसी ने डंडे मार के वो रिश्ता करवाया था? आई थिंक दैट इज अ मिस्ड मजबूरी स्टेप थी. इन द स्टोरी टेलिंग। आई थिंक वी डू नीड टू आस्क उमेरा इफ शी इज लिसनिंग, कि भाई क्या मसला है, क्यों नहीं बोल रही वो, क्या प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो एक्सप्लेन करें, कुछ तो बताएं, क्यों नहीं बोल रही। अच्छा जी, हमारे पास आखिरी ड्रामा हैं, और ड्रामे भी हैं, लेकिन एक ड्रामा जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करनी थी वो नीली कोठी है। नीली Oh, that's कोठी। kind of like, acha, I wasn't, you remember in the beginning we didn't like Neeli Koti, that one just seemed choppy, and now it's so cute. मैंने कबूल कर लिया कि these two are gonna both Talaha Chahur and क्या उनका नाम है, Anmol Baloch, have just stepped out of a salon every day. हम्म। Right? हम्म। वो putting that aside, it's such a cute little story. हम्म। I'm actually enjoying it. It's relaxing. It's fun. वो नहीं एक जैसे एक किताब आप पढ़ रहे हैं, अच्छा फिर ऐसे हुआ हम्म। वो, एंड यू ऑलवेज इमेजिन कि हेरोइन के बाल ऐसे बने होंगे और वो इतना खूबसूरत हसीन लग रही डिजाइनर होगी, फ्रॉक, नहीं, और वो हसीन लग रही। रेड डिजाइनर फ्रॉक पहन के जाएगी जो कोई और अफोर्ड नहीं कर सकता. के ड्रामा में यही है, यही ट्रोप है कि वो गरीब होंगी और उन्होंने शनेल के जूते पहने हुए होंगे, तो वो आई थिंक दैट दैट इज दैट स्टोरी बुक क्वालिटी इज अगेन, it's a bit difficult to chew into it in first, but once you're into it, it's so relaxing, it's so fun. And I really think that उसकी जो पेस है ना ड्रामों को, वो पेस रखनी चाहिए। एक के बाद ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, कहानी आगे को चलती चली जा रही है, तो फ्लो अच्छा है उस कहानी का, ठीक है। और
बात यह है कि जब आप ऐसी कहानी लिख रहे होते हैं ना, तो आपको पन्ना पलटना तेजी तेजी से होता है, जब भी आपकी कहानी रहती है। वरना अगर आप उसी वो स्लो मो में एक दूसरे की आंखों में देख रहे, जैसे मुझे वो सीन्स अच्छे नहीं लग रहे थे जिसमें इसी एपिसोड में था, जिसमें वो तला का कैरेक्टर है, वो सोच रहा है कि उसने मुझे यूं कह दिया। भाई नहीं डालो ये वाले सीन्स, ये नहीं डालो, ये आपकी कहानी की पेस को, और आपकी इतनी अच्छी कहानी चल रही होती है, फिर वो बैठ के याद करना शुरू, भाई नहीं डालो याद करने वाले सीन यार, नहीं मजे के लगते वो। नोटिस के जो रेवलेशन जब होता है कि अच्छा एवरीबॉडी इज कनेक्टेड, राइट, हम्म। माकूल लड़का भी कनेक्टेड है, और वो क्या उसका नाम है, एवरीबॉडी इज लाइक हमारी दोस्त, सिंड्रेला भी कनेक्टेड है, हाँ। हम्म। वेरी इंसेस्टियस है, राइट, लेकिन वो कोई इट्स नॉट लाइक हाँ what has happened, right? And so हाँ, everybody is really cool with it, and you think that's fine, yeah, एक ही मोहल्ले but में और don't एक you think, दुनिया में रह, do you feel like it's a little too complicated, these rishtas? I feel not like, at all. And I think why, and I give credit to अंजुम शहजाद, क्योंकि हमने जब उनको क्रिटिसाइज किया वो भी ठीक था, लेकिन what he did was instead of making it हाँ अच्छा तुम भी यहाँ आ गई हो, instead of making it a big deal, he was like अच्छा तुम भी यहाँ आ गई हो, okay, not a big hmm, deal, right? So you hmm, didn't feel it was a huge, because when you live in the same area, and it's quite common to meet people and know people, अच्छा हाँ एक, you know, way back I used to be a member of this gym and I used to know him na, so hmm, hmm, and you get this feeling कि fate has drawn you all together na. hmm. Acha, I also want to know what you think of the, the whole I am adopted. ये शादी that नहीं हो happens, सकती. that happens. Hmm. I wanted I to know mean, what you people thought. are gonna get fed up with me. I'm that auntie who has seen everything na, or as someone on India, Twitter was saying, "Appa, that happens." Ah, oh That yeah. people are very prejudiced against adopted children, क्योंकि देखो ना, they're showing materialism, aren't they? कि वो जो लड़की है, she's only interested in नीली कोठी and जायदाद, right? And Hmm. when she finds out that he's adopted, the family finds out they're not interested in his blood. You But really, I really like the angle where where he finds out that the father was kind of एग्जाम में उनको ऐसे पुश करके पास करवाया एंड एवरीथिंग. आई थॉट दैट वाज रियली वेल डन. दैट वाज अ रियली इंटेलिजेंट एंगल इन द Saima स्टोरी. Akram Chaudhary is, I think she's a teacher, but at a high level in a college or a university. She teaches Urdu literature or something like this. ओके. So, have you noticed how many great उसने बड़ी realistic points डाली हैं कि वो marks किसको मिल रहे हैं, how you shame someone in college life. You know, I और thought बाहर that मुल्क से बाहर very पढ़ने का ऑब्सेशन. हम्म. yeah. हम्म. So एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये क्या लोगों के पास पूरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजियां लगा के बच्चा बाहर पढ़ने चला जाए एक दफा यार. मैंने बहुत सारे बच्चों को माशाल्लाह तरक्की करते देखा है. मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करें, नहीं पढ़ाएं बच्चों को बाहर. अगर आपकी औकात है, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें. ये क्या मुसीबत है कि खाने को पैसा नहीं है और बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, तो जी हमने 6 बच्चे हैं तो 6 के 6 हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड या कहीं पढ़ेंगे जाके. ये क्या बात है? नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं यार, अगर आपका बच्चा ज़हीन है तो पाकिस्तान में भी कुछ कर सकता है. It amazed me when I went to Turkey last month. It was in हम्म. November. So हम्म. there were many people I spoke to in Istanbul to what Turkish they, and I said, "Oh, we studied in Pakistan, so we know हम्म. Urdu." And this was like हम्म. a shock for me, right? Yeah, a lot of international students study in Pakistan because Pakistan में education is very very cheap, especially medical colleges में तो बहुत लोग पढ़ने आते हैं, बहुत लोग पढ़ने आते हैं. Let us not put it down. It's not just cheap; it's high quality. It's high, क्योंकि it's very good. doctors of Pakistan go all over the world and Yep, high positions. yep. And why is that? Because of the quality of education. Yep, absolutely. And I think that it is such a shame for us to put down the quality of education in Pakistan. I mean, it can't be improved. Of course, it can be improved. But my brother's an educationist in Pakistan. He's from, we're all from Karachi, so he's running institutes in Karachi, and he has one of the most. He himself is a brilliant kid, and his team is brilliant, and the kind of innovations they're bringing in the classroom are second to none. So I don't understand this obsession कि अगर हम बाहर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा.
No, this is another thing. I think this is like even in the diaspora this happens. कर्जे हम्म। उठा के वो काम करना है, लोगों के मुकाबले पे उतरना है, हाँ और या हाँ। बच्चे की ख्वाहिश, आई मीन लाइक काम डाउन, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि कराची वाले आर मोर सेंसिबल देन पंजाबीज ऑन दिस, राइट, बट अपेरेंटली दे नॉट, कि भाई देखो जो चीज आपने कर्जे उठा उठा करनी है ना, मे बी इट्स नॉट दैट गुड फॉर यू। सो नहीं, कराची का ये है कि कराची में हैं ऐसे लोग ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे भी लोग हैं who will make something out of nothing in Karachi. Like my brother has literally created a space like this, and he learned from the best. He has a team of people with him who founded Cedar School. He basically is the CEO of Cedar colleges and schools, and Cedar has become a legacy of its own in just 10 years. It's not that और लोग नहीं अच्छा कर रहे, और भी बहुत सारे कॉलेजेस अच्छे हैं कराची में, लेकिन when I look at the kind of conversations he's doing with his and the way and उसका एक पूरा इनोवेटिव माइंडसेट है। तो कराची में मुझे लगता है ये है कि अली के जैसे, मेरे भाई का नाम अली है, तो अली के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इनोवेशंस कर रहे हैं और एबल हैं बहुत सारी इनोवेशंस करने के। उन्होंने अपनी स्पेस खुद बना ली है। हाँ, ये कम होता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप स्पेसेस बना सकते हैं। जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहती, बट ऑटिज्म के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट इज डूइंग अलॉट, एंड इट्स अमेजिंग बिकॉज उनकी शहबाज शरीफ की अपनी फैमिली में कोई आई थिंक स्पेक्ट्रम पे है कोई। तो ये जब तक, एक तो ये होता है कि यार जब जरूरी क्यों है कि आपकी फैमिली में कोई हो तभी आप कुछ काम करें, लेकिन चलें कर लिया फिर भी बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है। लेकिन ऑटिज्म के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज मैं कितनी सारी फैमिलीज को ऐसी जानती हूँ पाकिस्तान में जो ये कह के मुल्क छोड़ के चली गई कि जी यहाँ तो कुछ है ही नहीं। Acha, this is another thing, when you want to lift off those veils of hypocrisy, right, or stupidity, about Bahir ke, right, and I see हम्म। this because my husband is like, "Hey, bichare na," and you find out that when you see the list of people that drowned in a boat, right, there's हम्म। always Pakistanis and Afghanis in there, and चलो हम्म। अफगानियों का तो मैं समझती हूँ, लेकिन what is wrong with Pakistan so much कि या नहीं, एंड ऐसा कुछ मैंने नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखे ना, वो उस डुंकी में बैठने के लिए आपने 40 लाख दी है, हम्म। वो 40 लाख जो हैं, वो व्हाई कुडंट यू हैव स्पेंट देम इन पाकिस्तान, राइट? तो या वो सिर्फ ये था कि यू सीन अदर पीपल, पैसों की रेल पे ले डॉलर पाउंड आते हैं, यू सी दैट, यू डोंट सी दैट, to be successful over there you have to have an education, you have to do all of this, and जो किसी की किस्मत is not necessarily yours, right? वो So risk assessment नहीं अच्छी होती, and it might have been better if you lived for your parents, right, rather than they receive your body plus paying off a loan. So yeah, then the years of living there illegally, like a whatever status illegal alien। हाँ, और उसका बड़ा अच्छा टेलर स्विफ्ट का कोट है कि एवरीबडी इज जेलस ऑफ व्हाट यू हैव, नोबडी इज जेलस ऑफ व्हाट यू हैड टू डू टू गेट देयर। सो आई मीन ये जो हम लोग एक्सपैट्स और इमिग्रेंट्स हम लोग रह रहे होते हैं मुल्क से बाहर, हम एक सैक्रिफाइस दे के आए होते हैं। तो ये जो इलीगल तरीका है, ये तो खैर जो भी देख रहा है, अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसा है तो प्लीज़ ये तो ना करें। दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। प्लीज़ बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, एंड दिस इज़ व्हाट आर राइटर्स एंड इवन अस वी कीप सेइंग दिस कि भाई मटेरियलिज्म की तरफ मत जाओ। देखो वही बात है, जो जुस्तजू है खूब से खूब तर कहाँ, कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है वांट्स की, वो तो आपको कभी भी लेकिन मिलता वो रहेगा। वो नजर आता है ना, वो इतनी शो ऑफ, अब एंड दिस इज व्हाई बैक टू उमैरा अहमद, उनकी बुराई भी की है, लेकिन मैं उनकी अच्छाई करूंगी कि शी पॉइंट्स आउट दैट थिंग, कि जब हम लोग ना बड़े वो ऊपर से पर्दे डालते थे, नहीं गुर्बत थी ना, नहीं फलान थी। ये गैरत गैरत थी, उसकी शादी हो रही थी, वो तो वो किसी को पसंद करती थी इसलिए कर दिया। नहीं भाई, आपकी आंखों में डॉलर साइन चमक रहे थे, राइट, थैंक यू। या इसलिए आपने कर दी। This is like, I think with a lot of these things as well, you see these people see their neighbors, particularly I think I saw a documentary on Azad Kashmir, and they were saying these are big empty houses, right? In Gujarat and places like this. Big empty houses, क्योंकि वो सारी फैमिली जो है, they're living in an apartment in Germany or somewhere like that, छोटे से घरों में, तो इतने और बड़े पूरे बड़े, बड़े बड़े घर छोड़ के चले गए। हाँ, और वो खाली उनको सजा रहे हैं, वो दादा नाना जो भी है, एंड nobody is coming back to live because the children don't want that lifestyle. So वाह। that is, I wish sometimes that they would write on this, because unfortunately we tend to think of immigration as just a positive experience. It's not.
No, it's Lot of sacrifice. sacrifices, lot of differences and cultural and and I think our writers did try tackling it a few years back, but now we're back to नहीं वो वापस आ रहे हैं ना, उनका वहां बना नहीं तो वो आपका घर चोरी करने आ रहे हैं. Yeah, Sure. right. Sure. I think we should definitely have a discussion on this over glamorization of expat and immigrant life. I think nobody, हम जब कभी इस तरह की बात करते हैं, जी बड़ा सैक्रिफाइस है, लोग हमें नाशुक्रा समझते हैं. हम नाशुक्री बिल्कुल नहीं कर रहे. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट आई लिव, बट इट डज नॉट कम विद अ कॉस्ट. Not does not come without a cost. Like it comes with a cost, and it comes, and every immigrant and every expatriate is, from the moment they leave the shores to the day they die, to the life that it ends, it's all sacrifice. It's a lot of things they've given up. My final word on this is, because it feels like a lecture, is that you will see these people on Instagram showing their, oh, Mary life London mein, Mary life Dallas, Pakistani living in Dallas, हाँ. Pakistani हाँ. living in London, a Pakistani living in Germany. Look at Oh my my disasters. god. Uff Allah, look at this party we went to. उनका ये काम है to build up a life that is not reality. वही community. If I tell you in the same community जो अपने purses और I'll say Dallas Fort Worth area में they're showing off their purses, they're showing off. अच्छा हम हॉलीवुड थीम पार्टी पे गए थे, वहाँ 3-4 बच्चों ने खुदकशियां की हैं because of the social pressures, right? They don't tell you that, do they? That's not insta friendly, is it? Oh, no, but Insta friendly is, oh, we had brunch and we had nihari, and then we got out, and they don't tell you that they're working really hard to earn the money for those brunches and niharis. नो, एंड ऑल्सो लाइक आई फील लाइक जैसे मिडल ईस्ट है. अब मिडल ईस्ट एक बहुत अच्छी जगह है. एक बहुत सारे लोगों को इस मिडल ईस्ट ने बहुत कुछ दिया है. हमारी बहुत रिस्पेक्ट है एज पाकिस्तानीज. अगर आप मिडल ईस्ट को देखें तो हमारे खिलाफ कोई उस तरह का रेसिज्म नहीं है जो हमें बड़ा ओवर रेसिज्म कभी कभी मुझे कहानियां सुनने को मिलती हैं. I तो think the area that you live in is famous for rule of law यह and violence. आई थिंक कि दुबई के अंदर एक बहुत रियल कल्चर है और एक बहुत रियल लोग हैं जो यहाँ आके, जैसे वो मैंने आपको एक शेयर भी किया था, एंड आई होप यू गाइज वॉच दैट गाय ऑन इंस्टाग्राम. ही इज अ करीम कैप्टन एंड ही इज डॉक्यूमेंटिंग हिज लाइफ. ही इज डूइंग डिलीवरीज. समटाइम्स इट्स 40-50 degrees outside, so sometimes he's going through that. And I think that is also a life of the expat, of the immigrant. And even मैं जैसे अपनी ये मैं I want to make a video about this as well, and I know we've lost track of Pakistani dramas, but just want to end on this, that what you see on my social media, me doing makeup and me blow drying my hair with my Dyson, that's just like 0.00001% of what I'm living. I don't show you the pain that I go through as an immigrant and as as an expat and as a mom of special needs kids, because that's not what I want to show you, and that's not for public consumption. That said, I do want to remind people that is a life that I go through, and जो स्ट्रगल हम करते हैं, और मेरी स्ट्रगल ज़्यादा है ज़ाहिर है एज ए स्पेशल नीड्स पेरेंट, या किसी की अगर कम है, वो भी कुछ ना कुछ फेस कर रहा है यार. उसकी भी लाइफ में कोई चल रहा है मसला, उसको कोई लोन पे ऑफ करना है, उसके कोई और मसले हैं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं शायद वो दे पा रहा, वो किस तरह से कोई 10 चीज़ें छोड़ता है. वैसे आपने एक दफ़ा, याद है मुझे बात की थी सदफ, कि आपको नहीं पता कि हम अपनी 10 चीज़ें छोड़ते हैं ताकि वो जो पाकिस्तान में हमने ट्रिप लगाना है उसमें हमने ये बड़े बड़े तोहफे लेके जाने होते हैं. Well, I mean, right now is wedding season, and this guy put up this Instagram post, and everybody got triggered, right? ये जो आंटियां आई हैं डॉलर और पाउंड लेके, इन्होंने खर्चे नहीं है, इन्होंने नहीं खर्चने हैं ना. मैंने लिखा भूखा नंगा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ना. बट उनके डॉलर है, उनके पाउंड है, वो खर्चे ना खर्चे, बट ही डजंट नो दैट दे हैव प्रोबब्ली बीन सेंडिंग हिज पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो वो एक आर्ग्यूमेंट चलती रहती है, बट लेट मी रीअश्योर एवरीबॉडी, नोबडी इज कमिंग फ्रॉम डॉलर कमा के तो आपका घर पाकिस्तान में छीनने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि हमारे राइटर्स ही लिखते हैं ना. हाँ, ऑन दैट वेरी रियलिस्टिक नोट से हमें डिमोनाइज बड़ा किया जाता है ओवरसीज पाकिस्तानीज को, लेकिन उस पर कभी और बात करेंगे. थैंक यू सो मच सदफ, हमारे वरना हम तो बातें करते रहेंगे इसके ऊपर. आई होप गाइज आप लोग हमें देखते रहेंगे.
हम वापस आ रहे हैं अपने एक वीडियो के साथ जिसमें हम इस साल की बेस्ट परफॉर्मेंसेस, बेस्ट ड्रामाज, बेस्ट डायरेक्टर, टेक्निकल टीम, हम सबको एक्नॉलेज करना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ लोगों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं जो कि मुझे लगता है कि पॉपुलर अवार्ड्स नहीं करते। तो मैं सदफ पॉपुलर नहीं है तो हम पॉपुलर बात क्यों करें, हम हमेशा रियल रहने की कोशिश करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स इनफ कोटेशन मार्क्स फॉर टुडे। सदफ, व्हाट डू यू वांट टू I ऐड? don't believe in this award system at all because I don't think you can distill इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, इतने अच्छे हमारे एक्टर्स हैं, और आपके नहीं जी वो उन सबको इग्नोर करके ना तो तीन हमने चुननी है, ये चार या पांच, नो, आई एम सॉरी, आई एम बहुत गोना इम्पॉसिबल है। every good performance because they deserve it। इतने छोटे से रोल में, आई मीन जस्ट टेक सैयद जिब्रान, राइट? उन्होंने हम्म। इतना जबरदस्त कॉमेडिक हॉरर रोब, वो जो जिनकी शादी अजरबैजान बने हुए थे, राइट? अजरबैजान। And then you saw him in Meri Tanhai. I mean, that was amazing. या Broken, या right? And एंड नाउ again, यू विल सी हिम इन मुअम्मा, तो व्हाट ही right, विल and डू then देयर। as a terrible villain, and you're supposed to brush all that talent aside and say, नहीं, ये जो दो लड़का लड़की खेल रहे थे ना, आज वो जो दे वर रनिंग इन बिटवीन द ट्रीज और हवाएं चल रही थी और उसके बाल खुल गए, तो वो नंबर वन। भाई वो आई थिंक, अपनी मजेदार है, हाँ, लेकिन मुझे तो लगता है जैसे एमीज में होता है ना, एक्टर इन अ कॉमेडिक रोल, एक्टर इन ड्रामेटिक रोल, वैसे अलग करनी चाहिए इनको। खैर हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह कोई प्रॉपर अवार्ड सिस्टम है ही नहीं, बट वी विल, सदफ एंड आई आर मेकिंग आवर ओन लिस्ट, वी हैव मेड आवर ओन। हमारे दिल से हार्ट फेल जो है ना, वो होगी अप्रिसिएशन, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा की तरह, ऑलवेज। तो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सदफ फॉर गिविंग मी योर टाइम एज ऑलवेज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप भी, और जो आप देख रहे हैं वो भी। और अगले एपिसोड के लिए अपने सारे तलवार और नेज़े वेज़े सब निकाल लें, क्योंकि अगली एपिसोड हमारी होने वाली है ये सब चीज़ों के ऊपर, और फिर सबने लड़ाई करनी है। हाउ कैन यू नॉट गिव इट टू दिस एंड हाउ कैन यू डू दिस, इज सो बैड, सो डू दैट ऑलरेडी। अपने नाखून तेज कर लें, सारे छुरियां काटे सब तेज कर लें। हम मिलने वाले हैं जल्द। सदफ, तैयार हो जाए आप भी सदफ। हमें बहुत माशाल्लाह तारीफ भी होगी, चल कह लेकिन के छुप जाना है, चले भाई, हम लोग कह के ना तो छुप जाते हैं, छुप हैं? जाते हैं। हाँ सही है, क्या है कि बम फेंक के भाग जाओ। तो खैर, एनीवे गाइस, लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। और भी ड्रामे हैं, शरपसंद अच्छा चल रहा है। शरपसंद की बस एक ये मैं बात करना चाह रही थी सदफ, के उसके अंदर वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई है कि ये जो वॉकिंग बैक इन टू योर लाइफ आफ्टर अम्मा जी हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ बाय दैट पुअर शाजमीन, जो भी उसका नाम है हिरामानी के कैरेक्टर का। व्हाट अ टेरेबल पर्सन ही इज यार। है ना? Oof, tauba tauba. And Farasat ji, being Farasat ji, is always going to be Farasat ji. And Harim Faruqi, very good. अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम नुमान एजाज ना। God, so good. And हरीम फारूक ने उनकी नकल भी उतारी है, वो भी बड़ा अच्छा मजे का सीन था। ख्वाबों में मिली। क्या है ये ड्रामा? We have to do an in-depth review on that because it's so Gen Z and इन different from डेप्थ our रिव्यू कैसे होगा सदफ इस ड्रामे का? मुझे जरा एक्सप्लेन तो करें आप, इस ड्रामे का इन डेप्थ रिव्यू कैसे हो सकता है? आप I मुझे love बताएं। the way they suddenly chopping and changing ना, तो वो कोई फीलिंग नहीं है। अच्छा नहीं, बट तुम, आशिर वजाहत अचानक से शाहरुख, डर का शाहरुख खान कैसे बन गया है? क्या वेल हो दे, गया ये? नहीं नहीं, एक्चुअली डिडंट, आप गौर से देखें, अचानक नहीं बने वो। ही नहीं हैड मतलब, दैट, हाँ आई नो। थोड़ा सा है था शुरू से। ही वॉज इग्नोरिंग दैट गर्ल, उसको ही वॉज लाइक चलो हम भाग जाएं। ही वॉज पुशिंग हर टुवर्ड्स मैरिज एंड थिंग्स लाइक दिस। देर वॉज वो कैरेक्टराइजेशंस को आई डोंट हैव कंप्लेंट्स, इट्स द वे दे चॉप एंड चेंज ना। लेकिन हम शायद पुराने जमाने के हैं, सो यू नो कफील पता नहीं, वाला। वो बेचारे, वो बेचारे दोनों बच्चों को एक्टिंग नहीं आती, उनसे क्यों एक्टिंग करवा रहे हैं अदनान रजा मीर और आयना, आयना एक्चुअली आयना। अदनान रजा मीर हैज इम्प्रूव्ड, वो शुरू में आप बस देखते छोड़ दें थे आपको, सदफ, क्या सदफ, नहीं यार नहीं नहीं, सदफ नहीं। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुई है, वरना पहले तो वेरी सदफ डिफिकल्ट। आपने बार बेचारे का इतना लो रखा हुआ है, इसलिए आपको इम्प्रूविंग लग रहा है। वो बेचारा नहीं कर पा रहा, उससे नहीं हो रहा। रहने दो उसको, उस बख्श दो। फैन, मैं वैसे भी डरती हूँ ना, उसके फैंस आके मुझे आपा कहेंगे या समथिंग। हाँ कहने दें सदफ, हम हैं आपा हैं, अब हम क्या करें, अब तो हो गई आई है एम उम्र एक्चुअली आपा क्वाइट वाली। प्राउड ऑफ इट ना। हाँ, अब तो आंटी वाली उम्र है, मैं तो आंटी हूँ भाई, मैं अक्सर बच्चों की आंटियाँ हूँ, आंटियों में से हूँ। और आई थिंक एक और इस तरह के दो चार ड्रामे और भी मजे के चल रहे हैं। मैं तो देख, मतलब वो हम देख रहे हैं, उस पर हम बहुत लंबी बात, क्या मासूम, मैं क्या बात करूँ मैं।
जूम के ऊपर। मदावा अच्छा है वो भी, चलो अगर आपने देखना है तो देख लें, मजे का But चल रहा why है। is Madhava acha? Na, apna ke Madhava is not acha, यार right? इट्स ब्रेनलेस ना, बकवास। मुझे तो मजे का लग रहा है वो नहीं नहीं, मुझे ब्रेनलेस। मुझे नहीं, वो बना तो मजे का है, वो तो मैं एग्री वही करूंगी। वही है। वही, वो मेरी जिंदगी है तू वाला है कि भाई एक टॉक्सिक आइडिया के को लेके तो उन्होंने प्यारा बना दिया उसको। दैट्स नॉट फेयर, इस हम्म। जमाने में आप बस करेंगे कि दुल्हन तो बदल दी और उसको वो उसको ना पति को सीधा कर लेगी। नो थैंक्स। हाँ हाँ, वही है कि वो जो अपने अपने प्यार और अपने सुघड़पने से लड़के का दिल मोम कर देगी। हेट इट। बट टॉक्सिक ट्रोप डिस्गाइज्ड एज प्रिटी पीपल, साइन मी अप। क्योंकि वो उमर शहजाद और वो लड़की इतने प्यारे इतने हैं ना, प्यारे लग रहे हैं, आयशा मान आयजा, वाली, इतने आयजा अवान। गुड, तो इंसान कहता है अच्छा कोई बात नहीं ना, नहीं। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, वो बड़ा टॉक्सिक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये चीज जो है वो, आई डोंट नो, अब पता नहीं। हमारे अक्सर अब नए जो कुछ ड्रामे आने वाले हैं उनका भी मुझे कुछ इंतजार है। जो कुछ चीजें अब सना जावेद और फरहान सईद कर रहे हैं, वो मेरे हमसफर 2, तो दैट लेट्स सी व्हेन वी गेट टू सी। और आई थिंक कुछ रमजान ड्रामे आ रहे हैं, माया अली और अहद रजा मीर कर रहे हैं ड्रामा एक, तो ये तो सबको ही पता है, ये I वाली हमको स्कूप actually नहीं दे रहे। fight for that actually. I know people think I hate Ahad. I just didn't want him in certain roles, but this is going to be amazing. Because I'm a big fan of Haiza Iftikhar, and the idea that you can have a second chance at romance, and how हम्म। to deal with life. I think that they are both going to be amazing in this. I have high But hopes I for love them. Maya. I love Maya. I love Ahad. Again, I don't know why people think I hate Ahad. I don't hate Ahad. I hate Ahad at all. I think he's really good. And now that I'm He's watching good मेरी at जिंदगी तू, I have new appreciation for मीम से मोहब्बत। Oh, मतलब मैं definitely. अब तो कहती हूँ यार बहुत मास्टरपीस था वो। मेरी जिंदगी है तू क्या था है। मगर अगेन मेरी जिंदगी पे मैं बहुत रेंट कर चुकी हूँ। आई एम नॉट डूइंग दैट, बट Not आई gonna विल। fall in that trap. उस trap नो में नहीं आप, नो नो। right? So I am actually, I think Ahad is a really good actor, ही इज and अमेजिंग। when you see Adnan, you think Adnan has a lot of work to do. लेकिन he's a natural actor, Ahad is. अदनान इज नो वेयर वेयर आहद इज, मतलब कोई सीन नहीं है, प्यारी कोई शक्ल सीन है ही नहीं। बस भाई। प्यारा शक्ल। है, हसीन है भाई बच्चा वो, लेकिन नहीं होती उससे एक्टिंग के बस का रोग नहीं है। उसे मॉडल बनाया ना, इंस्टाग्राम मॉडल बनाए, क्यों नहीं बनाते उसे इंस्टाग्राम I मॉडल। still remember my mother. Was it my friend's mother? I think she was saying to me when Abhishek Bachchan first came along, she goes, कोई जरूरी नहीं एक्टर बने ना, क्लर्क भी बन सकता है। अस्तगफुरुल्लाह। हाय बेचारा, हालांकि अभिषेक, आई ऑलवेज लाइक्ड अभिषेक, आई ऑलवेज लाइक्ड हिज आईज, आई थॉट ही वाज, बट अगेन यू नो व्हेन यू हैव अ मैंने मैन एक्सपेक्ट लाइक, के ऊपर ना, हाँ, आई थिंक आर्यन खान इज वेरी स्मार्ट इन दैट कि ही नेवर डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू बी शाहरुख नंबर 2। उसने कहा यार ये करना ही नहीं है मुझे, ये मुझे करना ही नहीं है, ये पंगे में प्लीज, पड़ना ही वैसे नहीं है। वो भी बड़ा प्यारा है, अगर कर ही ले तो क्या बात है। नहीं कर ये सकता, आई डोंट थिंक ही हैज, बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द बिग थिंग्स दैट शाहरुख मेड शाहरुख इज दैट शाहरुख हैड द ड्राइव। ही वॉज अ पेनीलेस पॉपर किड हु by his own admission was somebody who had ये nothing in his, डायलॉग है शाहरुख का। आई डोंट थिंक ही वाज पेनीलेस ना। मतलब पेनीलेस पॉपर से मेरा मुराद ये कि जब उसने, मतलब उसकी स्टोरी है कि जी मैंने जब गौरी से शादी की थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, आई हैड नथिंग एंड शी loved me then. So my thing is that he wasn't a big deal and he had to literally climb up that uh, pillar, that totem pole of superstardom, which Aryan will get a launch. Like he did, kind of, but Aryan will never. I don't think Aryan has that drive. Shahrukh was driven by fuel, and like the passion that he had for acting and for Bollywood was something else. Very few people have that, and if you have that, you get there. But if you don't have that, I don't think you get there. So, thank you, Sadaf, for your time as always, guys. Let us know what you think in the comments section. As always, I know that you guys will. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम वापस आएंगे अपने अवार्ड शो के साथ और फिर 2026 के ड्रामों के ऊपर भी बात करेंगे और उस साल हमारे कौन से ड्रामे अच्छे इंशाल्लाह हम देखने को मिलेंगे। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की फिल्म भी आ रही है, JPNA 3 भी आ रही है, तो अगला साल बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आने वाला है। मेरी तरफ से भी आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एंड आई रियली होप दैट नेक्स्ट ईयर ब्रिंग्स ऑल ऑफ दैट टू यू। सदफ, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस, अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सदफ को फॉलो कीजिएगा। खुदाफिज। खुदा हाफिज।